لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے۔ تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے، نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار، جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں۔ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے۔ دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا۔ مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں، یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں۔ یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا۔ یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے۔ کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی، اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں، وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے 2 آنکھوں والے ہیں۔ بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں۔ چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام۔ بھئی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے، اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا، ولد ستار، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
लेकिन इसमें भी फिर कंफ्यूजन होती है। सलीम वल सत्तार बहुत से होंगे। भी मैं चंद दिन पहले किसी मजलिस में गया तो एक साहब आए, तारुफ आपका नाम क्या है? मैंने कहा तारिक मसूद। मैंने कहा आपका? कह रहे तारिक मसूद। बिल्कुल वही नाम, कर लो क्या करना है भाई। और चलें आगे, एक साहब का नाम भी तारिक मसूद, मेरा नाम भी तारिक मसूद, और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनका नाम मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती भी उनके शुरू में लगा हुआ है। तो कितनी कंफ्यूजन है ना। तो कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको देख के फौरन पता चल जाए ये वाला वो वाला नहीं। जैसे नामों में भी अगर कंफ्यूजन होगी तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा नादरा इससे ट्रेस करता है। ओ भाई, ये अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। इसको जला भी दोगे ना, अगर जला दो, तेजाब फेंक के मिटा दो, दोबारा जो नई स्किन निकलेगी उसमें वही डिजाइन फिर बना हुआ होगा जो पहले था। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से मुमताज करने के लिए उसी स्टाइल में लकीरें दी हैं जो पहले आपके पास थी। अब अंगूठा ही कोई काट दे तो एक अलग बात है, क्योंकि लकीरें अंगूठे पे होती है ना, अंगूठा ही खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे। तो ऐसी लकीरें फिर सिर्फ अंगूठे की नहीं, सारी उंगलियों की जिस तरह से हैं उसी तरह ही रहेंगी हमेशा ये। तो असल में आपकी जो पहचान है ना वो क्या है? ये अंगूठा। जब भी अंगूठे का तस्करा आता है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसके अंगूठे में 1 साल तक लेके बैठा रहा। यही सोचते थे हम कि इंसान की पहचान किससे होती है? अंगूठे से। तो उसने हमें यह कहा था कि हमेशा अपना पैसा खानदानी आदमी को दो जो तुम्हें फ्रॉड ना करे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कौन है? कह रहे मेरे जैसा खानदानी होना चाहिए। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दोगे? उसने कहा जब चाहो ले लो। मैंने कहा देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि स्टैम्प पेपर पे, यानी रिटर्न में सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो स्टैम्प पेपर पे ये लिख के दो। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। मुझे तो लग रहा था भाई बड़ा खानदानी हर चीज। तो मैंने कहा अंगूठा भी लगा दो। उसने कहा जब चाहो, जितनी चाहो उंगलियों के अंगूठे। कई जगहों पे अंगूठे लगे हुए थे। जब वो पैसे लेके भागा है, कई दिनों तक उसके अंगूठे हम देख देख के वो किसी ने पहनाई, अब हमने उसको वापस पहनाई है। बड़ी शुक्र है वापस ले ली, अच्छा आदमी था। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे कर पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर माफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए। आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है। आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए। कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा। आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा अब तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी किए, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत के तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई ये माफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं है। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो वो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया, इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। कज़ाए उम्री के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है,
आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियां ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, जोहर की जोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, नहीं कायम की, कजा करते रहे, 10-10 साल तक कजा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत में नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तिहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी, मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा, है भाई, इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा। हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। कहें मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं। लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साकित हो जाती हैं तौबा करने से, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी हैं। तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है। कहां अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाज ही जिम्मे से साकित कर दूंगा, कहीं लिखा हुआ है ये? बोलो भाई क्या हो गया, कहीं है कुरान में हदीस में कि जो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो। लोग कहते हैं कि जी हरज बहुत है 10 साल की नमाजें पढ़ने में, और इस्लाम में तंगी नहीं है। हरज जब है जब 10 साल की नमाजें एक दिन में हो। 10 साल की नमाजें 10 साल में कर लो भाई। 1 करोड़ रुपए लेके कोई बंदा पी गया ना, रोजाना पैसे ले रहा था बटवे से निकाल निकाल के, खरबों रुपए जमा हो गए। तो जब तक जिसके पैसे चुराए हैं वो माफ ना करे और आपके पास दलील ना हो कि इसने माफ कर दी है, क्या वो करोड़ों रुपए माफ होंगे इस बेस पे कि ये हरज है इन करोड़ों के अदा करने में? कोर्ट ये कह देगी कि भाई थोड़े थोड़े करके पे कर दो, एकदम न दो। जिम्मे से साकित कर देना ये आजकल के मजहबी स्कॉलर का की बहुत बड़ी जुर्रत है, जो उन्होंने किसकी तरफ निस्बत कर दी, बगैर किसी दलील के किसकी तरफ निस्बत कर दी, अल्लाह की तरफ। और ऐसे जाहिल हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि कुरान हदीस से दलील लेकर आओ कि 10 साल की नमाजें कज़ा करना लाजिम है। भाई जिसने माफ की है आप उससे दलील लेकर आओ। कहां अल्लाह ने लिखा है कि मैंने माफ कर दी? कर्जा अल्लाह का है और माफ कौन कर रहे हैं? आजकल के स्कॉलर। खौफ भी नहीं आता खुदा का इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। समझते हो कि नहीं समझते हो? और जब मैं जज्बाती होता हूं ना, तो आजकल के कुछ स्कॉलर्स ने मेरे खिलाफ मजमून लिखना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एतदाल से हट जाते हैं, ऐसे मज़ामीन अब बाज लोगों ने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिए। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुफ्ती साहब हद्दे एतदाल से बोलो हट जाते। एक आमिलों के बारे में मुफ्ती साहब हद्दे एतदाल से तजावुज कर ले, सारे आमिल गलत, ये थोड़ा मुफ्ती साहब ज्यादती है। एक 3 तलाक के मसले में मैंने कहा ना कि अगर कोई अहले हदीस से फतवा लेके बीवी को रख लेगा वो जिना ही है, बीवी हलाल नहीं होगी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ये थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, इतना भी सख्ती ना करें। मैं बताता हूं अभी। तीसरा ये मसला क़ज़ाए उमरी। क़ज़ाए उमरी साकित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की हैं या अल्लाह ने फर्ज की हैं? अल्लाह ने माफ कर दी है, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ कोई प्रोफेसर साहब कर रहे हैं या कोई स्कॉलर कर रहा है आज का। और चौथी अदालती खुला। मैं जब कहता हूं ना अदालती खुला, जो आज का जो कानून गवर्नमेंट में बना हुआ है ये बिल इजमा बातिल है। इस पे भी कुछ स्कॉलर ने मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब खुला के मसले में भी एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर। इतना भी नहीं है। टॉपिक से हटके मैं थोड़ा इन चारों को थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चले कि ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं, मैं एतदाल पे हूं। देखो एतदाल किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा रखना। एक चीज काली है ना, एक आदमी कह रहा है ये सफेद है, मैं कहूं ये धक काली है भाई, इतनी काली है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आएगी। लोग कहे मुफ्ती साहब थोड़ा एतदाल से काम ले। वो जब कह रहा है सफेद है, आप जब कह रहे हैं कि काली है, तो बीच का कोई पीला रंग कह दें आप इसको, तो ये एतदाल होगा? ये झूठ होगा भाई। जब 100% ब्लैक है, किसी भी जाविये से देखो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कहना ही एतदाल है। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन न करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर जमाना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे जखीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है, खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए हैं, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलहदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को यह बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम, इस्लाम को चेंज ना करें आप, इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो, आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसा ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, और आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है, तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे में इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता है ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहे ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना, दोनों जब चाहे एक दूसरे को छोड़ दें, तो भाई मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी। गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना, मैं पकड़ के सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात, बोलो ना, नहीं दिए हैं। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क
نہیں پڑے گا, کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں, فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت میں ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی, کمانا اس میں ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں کیا؟ ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کا پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت تجھ پہ واجب نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. انہی قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں, ان حقوق کی بات کرو بھائی جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. یہ والے تو بھائی تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے کیوں عورت نے اسلام نے. پرسوں میرے سامنے ایک 30 سالہ لڑکی کا واقعہ آیا, پرسوں نہیں, واقعہ تو 2-3 مہینے پرانا ہے. 30 سال کی لڑکی, 3 بچیاں اس کی, شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا.